I was telling about the line, not at plane, vectorial equation of the plane that is R. You know that I don't want to make it further figure, that a vector line passing through the vector A and parallel to B, that is R minus A equal to lambda B. R minus A equal to lambda B. This is B. R the general point, A the point through which the line passes, and B the vector to which line is parallel. The second, x minus x1 upon L equal to y minus y1 upon m equal to z minus z1 upon n, where L, M, N, not necessarily the direction cosines, rather these are direction ratios. And other things I have told you much about the line. One thing, third, any point, say it is R, then any point in the line will be LR plus x1, LR plus x1, MR plus y1, NR plus z1. The point and the angle between the two lines, angle between the two lines R minus A1 equal to lambda B1 and R minus A2 equal to lambda B2, then cos of theta can be written as B1 dot B2 अपॉन जो हमारा पहले से पता है, कोई भी दो वेक्टर्स हो इसी के पैरेलल है ना, तो इनके बीच का एंगल वो लाइन के बीच का एंगल होगा, एंड देन cos थीटा कैन बी रिटन एज B1 dot B2 upon mod B1 B2. Projection, this is fourth and fifth. Projection of a vector A
on vector B is A dot B upon mod B, जिस पर प्रोजेक्शन चाहे. दिस फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B on vector A, again V dot A upon mod A. यानी जिस पर चाहे उसके मॉडुलस से हम डिवाइड किया करेंगे. That is all. Now I should come to the questions. If anything more I shall remember, I shall again refer it while doing the sums. One question, a very simple question is that 6x minus 2, the question is a line 6x minus 2 equal to 3y plus 1 equal to 2z minus 2. Of course, this is the question of the Cartesian form ना. अरे वही फॉर्म जो अब देखिए ना, इसको निकाल लिया मैंने, 6 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 अपॉन 6 इक्वल टू 3y प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 2. क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्यों ऐसा कर रहा हूं? अरे याद करिए, टू मेक the equation like x minus x1 upon L equal to y minus y1 upon m equal to z minus z1 upon n, ऐसा बनाना चाहता हूं. तो ये तो तभी बनेगा जब x फ्री हो यानी उसका कोफिशिएंट 1 हो, तो मैं कहूंगा dividing by the LCM of 632, that is 6 into s minus 2 by 6 whole upon 6 equal to 3 into y plus 1 by 3 upon 6 equal to 2z minus 2 upon 6. Hope you understand nicely that why am I dividing? To make it free, बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा. That will be x minus 1 by 3 whole upon 1 equal to y plus 1 by 3 whole upon 2 equal to z minus 2 upon 3. हो गया ना वैसे ही, x minus x1 upon L, y minus y1 upon M, z minus z1. तो मैं कह सकता हूं the line passes through 1 by 3 minus 1 by 3 2 and its direction ratios. My dear, I had told you that इनके नीचे जो LMN हम लिखते हैं वो LMN डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है. इट मे बी और मे नॉट बी. तो बेटर सेफर साइड क्या है? टू टेल that will be LMN or the direction ratios. क्यों सर सेफर साइड? क्योंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है, लेकिन उसी का प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज A B C, नॉट नेसेसरली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1. तो सेफर साइड में वो डायरेक्शन रेशियोज बोलना है. एंड हियर यू फाइंड, अगर इसको LMN माने तो क्या भला L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होगा? नहीं होगा. सो direction cosines are direction ratios are 1, 2 and 3.
परहैप्स यही चाह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज, राइट। अगर डायरेक्शन को कोसाइंस पूछता, अगर मान लो डायरेक्शन कोसाइंस पूछता, देन व्हाट कुड यू डू, यू शुड डिवाइड बाई ईच बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन। ये शायद मैंने कुछ इस तरह से कर दिया था। एक क्वेश्चन है, मैं अब करूंगा नहीं बेटा, फाइंड, आई एम नॉट हैविंग द क्वेश्चन हियर टू बी डिस्प्लेड, सो आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस व्हाट आई शैल लाइक टू हैव straight way on the board. The question again, find the angle between the lines, find the angle between the lines x minus 2 by 2 equal to y minus 1 by 5 equal to z plus 3 by, नहीं मुझे करना चाहिए था एंड x प्लस 2 बाई माइनस 1 y माइनस 4 अपॉन 8 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 4। ये है फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ये है a1 b1 c1, ये है a2 b2 c2। यू नो दैट दिस इज नॉट l1 m1 n1, सो व्हाट शैल वी डू, a1 b1 here, a1 b1 c1 are 2 5 minus 3 and a2 b2 c2 are minus 1 8 4, so cos theta equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square under root a2 square plus b2 square plus c2 square. I am sure you can do it. Substitute and find the answer. The answer is giving cos inverse, नीचे तुरंत आंसर भी दे दिया है, आंसर इज cos inverse, that is 26 by 9 under root 38. I like such questions where the answer is very much given just below the question. The next, find the angle between two diagonals of a cube. Find the angle between the any two diagonals of a cube. So I should make cube means each side being equal. Say A the side. I should make, I'm not very good in making the figure, but still look here, here, this is x, y, z, this is x, say this is y, and this is z, this is origin. I'm making the cube just here, this is this way, then parallel to this, then here, क्या यार मेरी इज्जत रखो, and here A B C D A E F, ओ हो यहाँ भी होगा, yes, and that is, देखो भाई थोड़ा और आगे चले जाओ, and here
मैं करता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए भी मैं करना चाहता हूं, आप वैसे तो परेशान हो जाएंगे। द डायगोनल्स आर, अब इसमें इमेजिन करिए, द डायगोनल्स आर, एक तो OG है, यहां से मान लीजिए O से है तो यहां पर, यहां से और ये कमरे के उस लास्ट पॉइंट पर ऐसे, जो बिगेस्ट रॉड कैन बी केप्ट कॉर्नर में, तो AD diagonals are, here I am writing, diagonals are AD, BE, CF and OG and OG। कोऑर्डिनेट्स देखूं क्या होगा बेटा, तो A विल बी, सबकी तो साइड A है, सबकी साइड A है, आपने मान लिया है, से A द साइड, देन और x एक्सिस पर है तो YZ 0, सो A बीइंग A 0 0। y साइड में भी YA होगा, लेकिन बाकी सब 0 होगा, तो 0 A 0। E कितना होगा, ये Z एक्सिस पर है तो Z वैल्यू तो होगा, तो 0 0 A। G कितना होगा, A, अरे वो तो सब होगा, A G। चलिए, तो बड़ा भाई लेबोरियस क्वेश्चन है। D कितना होगा, D हियर YZ प्लेन में x 0 होता है, सो 0 A D, ये YZ प्लेन में x 0, और ये है XY प्लेन, Z 0 होगा, सो A 0। और कोई पॉइंट हुआ 0, 0 वो तो दुनिया में पता है। F इज व्हाट, दिस इज इन XZ प्लेन, XZ में Y 0 होता है, सो A 0 A। इतना मेरे पास पेशेंस रहता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि बच्चों के लिए झंझट है, इसलिए मैं कर भी रहा हूं। हाँ? इतना फिगर कौन बनाने जाएगा। डायगोनल्स आर AD, आप इमेजिन कर सकते हो बेटा, और कुछ नहीं। AD BE, B कितना है, B और E यहां है, F दिख रहा है, BE CF एंड OG, यही 4 डायगोनल्स हैं। तो AD के डायरेक्शन रेशियोज आर AD, बहुत ही बोर होता हूं भाई मैं। AD तो माइनस A AD का डायरेक्शन रेशियो ऑफ AD। BE तो माइनस A इसमें से D और वो A हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BE। CF is A minus A minus A and OG, of course OG 0 0 0, तो A minus 0, that is A। अब समझ रहे हैं ये कैसे डायरेक्शन रेशियो ऑफ OG कैसे निकाल रहा हूं। अरे यार, यहां से कोई भी 2 पॉइंट्स दिया जाए तो उनका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ AD, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, द टर्मिनल पॉइंट माइनस ये, ऐसा करके ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो पूछ क्या रहा है ये कह रहा है, जरा क्वेश्चन देखिए,
के फाइंड द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स। ओहो, एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स, तो कोई भी दो से निकाल लो, ऐसे ही करना। मुझे मोह हो रहा है इसको फिगर को मिटाने में, क्योंकि आई हैव मेड इट। तो हाँ, तो कोई भी दो डायगोनल्स के बीच में कर लो आप, है ना, कोई भी दो डायगोनल्स के बीच में, यानी AD और BE, AD एंड, चलो पहला ही कर, बस हो गया, एक करूंगा, एंगल बिटवीन एनी टू, सब एक ही बराबर होगा, एनी टू डायगोनल्स से AD एंड BE, कोई भी दो, ADB, BCF, CFOG, ADOG, कोई भी तमाम निकालना चाहिए। हाँ, तो AD का तो ये तो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो, हाँ, तो और AD एंड BE तो माइनस, हाँ, ये कितना होगा, हाँ हाँ, माइनस ए क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट, लिखवाया तो हूं यार, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट, ऐसा मैंने अभी कराया है, अरे लिखा है cos थीटा इज, तो A1 A2, एक तो इसके बाद अगर गड़बड़ हो जाए तो और तकलीफ है, A1 A2 माइनस A माइनस A, दैट इज A स्क्वायर B1 B2 माइनस A स्क्वायर C1 C2 प्लस A स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, हाँ, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी 3A स्क्वायर एंड अंडर रूट अगेन 3A स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा 3A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज cos थीटा, वन कैंसिल, A स्क्वायर अपॉन, हाँ, देयरफॉर यहां टॉप में लिख रहा हूं cos थीटा इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन A रूट 3, हियर आल्सो A रूट 3 and that is 1/3, so cos theta that is 1/3, तो cos theta is 1/2, तो ऐसा थोड़े होगा दूसरे में बदलेगा। माय डियर चिल्ड्रेन, आप इसी तरह से बिल्कुल इसी नकल से यू फाइंड द एंगल बिटवीन B and CF and OG का कर लेना, and everywhere you will be getting 1/3, so angle between, I rub it, now my work is over। कह रहा है वो, क्या कह रहा है कि अगर कोई क्यूब है तो उसके डायगोनल्स के बीच का एंगल निकालिए। आई हैव मेड इट ईच साइड एज क्यूब इज देयर, सो ईच साइड विल बी A, फिर उनके कोऑर्डिनेशन किया, कोऑर्डिनेट्स बताया, फिर ADB CF OG ये चार डायगोनल्स आए, कोई भी दो डायगोनल, नॉट नेस, नो, फॉर यू इट, आप लिख सकते हैं सिमिलरली the angle between BE and CF and OG all will
ऑल विल बी cos इनवर्स 1/3। ये हो गया आंसर। Yes, cos inverse 1/3. Find the equation of two lines through the origin which intersect. अब कम से कम एक एक छोड़ें यार, है ना, एक एक छोड़ता हूं। एक कह रहा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड लैम्डा so that the lines मैं कुछ नहीं कर सकता, ये है ये 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2 लैम्डा इक्वल टू 5z माइनस 10 upon 11 and 7 minus 7x whole upon 3 lambda equal to y minus 5 upon 1 equal to 6 minus z upon 5। फिर से देख लूँ कहीं गड़बड़ हो जाए। 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 7y माइनस 14 अपॉन 2 लैम्डा इक्वल टू 5z माइनस 10 अपॉन 11, राइट। 7 माइनस 7x अपॉन 3 लैम्डा, y माइनस 5 अपॉन 1 एंड 6 माइनस z अपॉन 5 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइंड लैम्डा सो दैट लाइन्स आर सॉरी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये लाइंस है। आप चाहेंगे ना कि लाइन को जरा सा ठीक से बना लूं मैं, बेटा इसको ठीक से बना लूं तब ना उसके बाद डायरेक्शन रेशियो क्या हो रहा है भाई, चलेगा। आई एम राइटिंग हियर, I'm just reforming the line x minus 1 upon minus 3 equal to 7 y minus 2 upon 2 lambda equal to 5 z minus 2 upon 11। Or I can write here that this can be written as x minus 1 upon minus 3 equal to y minus 2 upon 2 lambda by 7। नीचे उतार लिया, बिल्कुल बनाना चाहता हूं ना x minus x1 ऐसा, and z minus 2 upon 11 by 5। सब में ऐसे ही कर रहा है ये। दूसरा वाला भाई इतना ना करे तो कैसे चलेगा। द सेकेंड लाइन इज हियर 7 1 माइनस एक्स अपॉन 3 लैम्डा इक्वल टू y माइनस 5 y माइनस 5 अपॉन 1 एंड इक्वल टू 6 minus z upon 5।
जरा मैं देख लूँ, 7 माइनस 7x अपॉन 3x, 7 बाहर निकाल लिया, देन y माइनस 5 अपॉन n एंड 6 माइनस, लेकिन ऐसा भी तो नहीं चलेगा ना, है अपना क्या चलेगा, x माइनस 1 अपॉन 3 लैम्डा बाई 7 विथ माइनस साइन क्यों, x माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। थैंक यू। कभी कभी हो जाता है, वैसे मुझे होता नहीं है। यस, नाउ A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are there. A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2 are there. So cos theta नहीं, क्या जरूरत है, since they are perpendicular, so since lines are perpendicular to each other, then 3 lambda into minus 3 lambda by 7 plus 1 into 1 plus 5 into minus 5 equal to 0. Equal to 0, and then find lambda. And what to be that? Find lambda. Yes, then find lambda. आंसर देख रहा हूं, आपको दे दे रहा हूं lambda की वैल्यू. Lambda is coming here, my children. Is coming. अब आप वेरीफाई करना, 7 आएगा, करने के बाद आएगा. नेक्स्ट, find the equation of the perpendicular I'm not done, okay na? Question is telling, find the equation of the perpendicular, find the equation of perpendicular, लिख दे रहा हूं भाई, perpendicular drawn from the point 2 4 minus 1 to the line. लेकिन एक एडवांटेज है जब मैं सामने देख रहा हूं, अदरवाइज देयर आई वाज लुकिंग, समटाइम्स इधर से उधर होता था, माइनस की प्लस हो रहा है, समटाइम्स रॉन्ग, यहां सामने दिख रहा है. हाँ, that is find the perpendicular, find the equation of the drawn from the point 2 4 minus 1 to the line, 2 4 1 to the line, x plus 5 upon 1 equal to y plus 3 upon 4 equal to z minus 6 upon minus 9. ये है. ये यही है. चलिए साहब, देखता हूं. What is the equation? Find the equation of the perpendicular. Equation of the perpendicular will be solution. Equation of the perpendicular will be x minus x1 यानी 2 from the point, अभी फिगर बना दूंगा, upon L equal to y minus 4 upon m
इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन n से इक्वल टू r। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर दिस वे ये 2 4 माइनस 1 2 4 माइनस 1 से इसका और ये लाइन यहां पर है, लाइन है ये है लाइन। L M N, so any point, ये भी बता चुका हूं, any point on this line on 1 will be LR। क्यों ऐसा करो? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर एनी पॉइंट, वो तो हो ठीक है LR प्लस 2, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? हमको फायदा क्या होगा? L दैट इज इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन, नहीं इससे, हाँ दिस इज टू द लाइन x प्लस 5, ये है, लिख दे रहा हूं x प्लस 5 अपॉन, गुड क्वेश्चन, x प्लस 5 अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 4 एंड z माइनस 6 अपॉन -9 शायद है, -9, देख लो -9 है कि नहीं, तो करने में गड़बड़ी हो जाएगी। कहाँ आ गया भाई क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन, नहीं ये भी नहीं है, कहाँ चला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, हाँ यही तो है, यही है, हाँ यही है, ये देखिए 2 4 माइनस 1, हाँ यही है। देन एनी पॉइंट से दिस इज 2, एनी पॉइंट on this line 2 will be say this is P and this is Q point. So any point on this line will be R minus 5, 4R minus 3, मैं समझा दे रहा हूं, minus 9R plus 6, minus 9R plus 6, ये this is the point, any point, this will be point everywhere on AB, be clear? ये जो point है, any point on this line will be this one, then why not A, why not B, why not Q? अरे कोई भी point है AB लाइन पर, वो कहीं भी हो सकता है, हैं? so that is तो ये भी पॉइंट है, लेट इट बी Q, से Q पॉइंट, से Q पॉइंट, तो ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, सो Q विल बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, ये पॉइंट होगा। लेकिन ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा तो PQ का डायरेक्शन रेशियो, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, अच्छा क्वेश्चन हुआ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, Q तो पॉइंट आपने नोट कर लिया यहां पर, Q पॉइंट यहां पर, ये तो इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करूं तो डायरेक्शन रेशियो, दो पॉइंट्स है तो उनका डायरेक्शन रेशियो x2 minus x1, y2 minus y1, direction ratio of PQ with the formula x2 minus x1, बता चुका हूं, केवल याद दिला रहा हूं, y2 minus y1 and z2 minus z1,
ये होगा डायरेक्शन रेशियो। तो मैं क्या करूं, इसमें से ये जो है ये और यहां पर इन पॉइंट्स को सो पता नहीं क्यों कभी कभी चाक ऐसा गीला टाइप लगने लगता है। सो नो प्रॉब्लम। हाँ, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू क्या क्या होगा बेटा, 2 4 -1 द पी एंड Q is here this one will be the ये तो वो लिखा हूं देखो पी क्यू का R -5 -2 कामा R -5 -2 4R -3 -4 4R -3 -4 कामा -9R, कहीं गलती हुई फिर मैं छोड़ दूंगा, वो आप लोग करेंगे, -9R +6 and +1 if it is -1 and therefore that is R we can and that is equal to 0। नहीं डायरेक्शन रेशियो ना, ये तो डायरेक्शन रेशियो है, ये इसका डायरेक्शन रेशियो है, बट इट इज परपेंडिकुलर टू it is perpendicular to the line having direction ratios क्या 1 4 -9 1 4 -9, तो क्या होगा इन दोनों का, कहां भाई आर मन, हाँ, तो दोनों का प्रोडक्ट A1 A2 इक्वल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विल बी 0। देन R निकले तो उसके बाद से क्या चाह रहा है, मिटा दिया, बट इट विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन, बिल्कुल ठीक है, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज दिस, तो निकाला होगा हमने R -5 -2, क्या कहां कर दिया, पी क्यू का तो ठीक है, पी क्यू का निकला डायरेक्शन रेशियोज दिस वन एंड बट इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन, तो इन दोनों का तो R -7, ये इसका पी क्यू का डायरेक्शन रेशियोज R -7 4R -7 4R -7 -9R +7 DRs of PQ and DRs of AB being 149 -9, उसमें कंडीशन क्या होगा जब दोनों परपेंडिकुलर हैं, सिंस दे विल बी, लेबोरियस क्वेश्चन है क्या, दे विल बी परपेंडिकुलर, सो 1 × R -7 प्लस 4 × 4R -7 -9R +7 equal to 0 for getting R, प्रोवाइडेड इस बीच में सुर पूरा करने में हमारी कोई गलती नहीं हुई हो। आ जाना भाई, दैट इज R - कितना बड़ा करना पड़ रहा है, 16R -28 प्लस 81R, बताइए ना, 81R -63 इक्वल टू 0।
then this is 81 or this is 16. This is r into r minus 7 into 1 ना, तो इसको ही तो निकाल लेना चाहिए था 4r minus 7 16। तो यहाँ क्यों नहीं लिखा, लिख देना चाहिए था ना कितना। हाँ देखना r minus 7, सो r minus 7 plus 16r minus 28 plus 81r minus 63, then 8 98 81 plus 16, that is minus, good, equal to 0. बहुत सुंदर। Therefore r equal to 1। कहीं जरा सी भी गलती हुई होती तो सब गड़बड़। r equal to 1, then what? अभी काम पूरा नहीं हुआ, r equal to 1 आया बेटा, r equal to 1, therefore कहाँ मिटाऊं मैं, लेकिन ये तो r आएगा तो q आ जाएगा। कह रहा है ना कि एनी पॉइंट से q with the foot of perpendicular, that is r minus 5 4r minus 6, ये होगा ये पॉइंट। बहुत तंग कराते हो यार। बट Q विल बी, खैर अच्छा भी क्वेश्चन, इंटेलिजेंट भी है। Q विल बी हियर, Q तो मैं लिखा हूं कि द पॉइंट, हाँ r minus 5, yes, and r is 1, so minus 4 here, r equal to 1, then 4 minus 3 यहां रख रहा हूं ना, यहां रख रहा हूं, तो 4 minus 3 that is 1, यहां भी रख रहा हूं 1, तो minus 9r plus 6 minus 3। अब क्या है इसको, अब क्या चाह रहा है, ये पॉइंट Q हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, P है, सो इक्वेशन ऑफ PQ इज अभी भी पूरा रखना पड़ रहा है। ये Q निकला, ये P है, तो परपेंडिकुलर इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ PQ विल बी x माइनस x1 यानी x माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, that is minus 4 minus 2 minus 6 equal to y minus 4 upon y minus 4 upon 1 minus 4, that is, ये लिखूं क्या, इसको नहीं लिखूंगा, अच्छा चलो 1 minus 4 इसको भी लिख दे रहा हूं, minus 4 minus 2 and equal to z plus 1 upon minus 3 plus 1 यानी minus 2, this is the answer। तो कितना होगा कि this will be x minus 2 upon minus 6 equal to y minus 4 upon minus 3 equal to z plus 1 upon minus 2, that is माइनस से डिवाइड करूं तो x माइनस 2 अपॉन 3, माइनस से 2 से डिवाइड कर रहा हूं, क्यों, अरे रेशियो है ना, -2 is to -3 या 2 is to 3, माइनस से डिवाइड कर सकता हूं, एंड और 3 से भी डिवाइड कर दिया तो 2 से डिवाइड कर दिया तो -3, वो तो हो गया 3 इक्वल टू 2
2 3 6, हाँ, y माइनस 4/3 इक्वल टू z प्लस 1/2। और कोई नुकसान नहीं था इसलिए हमने ऐसे कर दिया। शुड आई वेरीफाई द आंसर माय डियर? सिक्स थ्री टू। अरे ये 6 है ना, कहां से? 632, राइट। द आंसर इज x माइनस 2/6 इक्वल टू y माइनस 4/3। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है आंसर, दिस आंसर, दिस द आंसर। You'll be getting also the video photograph, so you can find again. Any more question? मैं इसमें देख रहा हूं, find the equation of the line passing through this perpendicular to the line. ये तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। Find the equation of the line passing through -1 3 2 and perpendicular to the line, this one। नहीं अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, या टाइम रहेगा तो मैं करूंगा। छोटा क्वेश्चन है बहुत। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। वेक्टर इक्वेशन नहीं पूछ रहा है तो कोई भी कर सकता हूं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ the line passing through 2 minus 1 1 and parallel to the line। ये तो बहुत आसान हो गया, ये भी parallel to the line joining -141 and 122। ये तो कोई बड़ा, तो अगर कार्टेशियन कह रहे हैं, कार्टेशियन तो कह सकते हैं x माइनस 2/y प्लस 1/z माइनस 1 क्या, x माइनस x1/a या l। लेकिन l के बारे में आप बहुत ज़्यादा हमसे पूछेंगे नहीं, l नहीं मैं मानता हूं, मैं a b c मैं बात कर चुका हूं उसको। y प्लस 1/b या m कह सकते हो, लेकिन है वो मेरे तरफ से b एंड z माइनस 1/। लेकिन a b c कैसे निकालेंगे? दैट इज यस x2 माइनस x1 यानी 2 और 2 माइनस 4 यानी -2 एंड 2 माइनस 1 आंसर। डायरेक्शन रेशियोज भी दैट इज 1 माइनस -1 2 2 माइनस 4 -2 एंड 2 माइनस 1 इज 1। दिस इज द आंसर कार्टेशियन में। और वेक्टर फॉर्म R इक्वल टू, मुझे जरूरी नहीं है, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूं, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। देन इक्वेशन R तो जनरल है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू A, दैट इज, आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई लाइन का इक्वेशन है तो R इक्वल टू A प्लस लैम्डा मीन्स द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A, द वेक्टर A एंड पैरेलल टू द वेक्टर B। समझा चुका हूं, थ्योरी समझा चुका हूं। दिस इज R एंड दिस इज A एंड दिस इज B। तो आपको बताया था R माइनस A इक्वल टू लैम्डा B, ऐसा समझाया था। तो वही तो R इक्वल टू A, तो R इक्वल टू A मतलब A यानी 2i माइनस j, ये a चल रहा है, प्लस के
प्लस लैम्डा बी। तो बी क्या होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस, तो ये है ना, ये तो मैंने सब्ट्रैक्ट करके निकाला था, प्लस लैम्डा 2i माइनस 2j प्लस k। आंसर ये हो गया। बिल्कुल सही, आंसर इज देयर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यस आई मस्ट हैव बीन टोल्ड, आई मस्ट शुड हैव बीन टोल्ड। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब बहुत ही मजे में वो पूछते हैं, तो पहले तो उसके समझाना पड़ेगा हमको। हाउ द टाइम फ्लीट्स, फास्ट मूव्स, but after doing it again I will do on the lines, time permits, not now. First I will say you about the plane. Find the shortest distance. वाह, पहले तो shortest distance समझाऊंगा आपको। shortest distance, say this is the line and this is the line, दो लाइन्स है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लो ये है लाइन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b1 a1, एंड ये लाइन है r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। आप ये तो नहीं कहेंगे r1 r2 क्यों नहीं लिखते हैं, तो वो फिक्स पॉइंट हो जाएगा, r द वेरिएबल पॉइंट, सो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और वो फार्मूला देखिए a1 प्लस, मतलब इनमें ये है कि b1 और b2, यहां पर कोई पॉइंट है a1 यहां है a2, और यहां पर कोई पैरेलल पॉइंट है, मान लीजिए इसी में है ये b1 और b2, मान लो यहां से यहां पर है या इसी में है b1 से। आप कहेंगे इससे कैसे मान लिया आपने, क्यों मान लिया? अरे वो जो लाइन है वो खुद अपनी लाइन के भी तो पैरेलल हो सकता है। आप कहेंगे नहीं छू रही है लाइन, तो हम बाबा वेक्टर में ऐसे मान सकते हैं। चलो अगर वहां होता b1 और b2, चलिए यहां पर b1 है और यहां पर b2 है जिसके पैरेलल है, तो आप जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर, यू नो, कोई भी दो लाइंस हैं, यहां से, और मान लीजिए कि उधर सामने एक बड़ी सी रोड जा रही है और यहां हम एक पॉइंट पर हैं, तो हम यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे ये मुश्किल से 100 यार्ड्स है, न कि कहेंगे वो वाली लाइन वो 500 यार्ड्स है। कैसे कहूंगा? कोई भी काम जहां पर की है उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम ये कहेंगे कि दिस लाइन, दिस इज a2 एंड दिस इज a1, तो PQ, मैं PQ RS कह रहा हूं, RS, तो RS वेक्टर इज a2 माइनस a1। लेकिन हमको इससे थोड़े मतलब है कि हम इसको करके मॉड वैल्यू निकाल दें, कह दें यही है a2 माइनस a1। तो शॉर्टेस्ट, मैं लिख भी दे रहा हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द प्रोजेक्शन ऑफ RS on PQ। और ये B1 B2 है,
ये B1 B2 है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? दैट इज B1. नाउ PQ इज B1 क्रॉस B2. B1 क्रॉस B2. क्यों सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप याद करिए कि क्रॉस वेक्टर में जो उसका, अब मैंने बताया था क्रॉस वेक्टर में कि उसका A and B, if the two vectors are cross multiplied, then A cross B, जो mod A mod B sin theta, but its direction is perpendicular to A and B. और इसलिए B1 और क्रॉस B2 ये तो यहां पर है, वो उधर जा रहा है, हमें PQ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो B1 क्रॉस B2. एंड सो प्रोजेक्शन ऑफ A2 minus A1 on B1 क्रॉस B2. मैं अगर नहीं समझा पा रहा हूं तो मेरी कमजोरी है. B1 और B2 से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. वो कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, लेकिन पहले परपेंडिकुलर वेक्टर तो निकालूं. और परपेंडिकुलर वेक्टर हमने बताया था, फिर से यहां पर मैं दिखला दूं. दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B. तो हमने बताया था A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा, उनके बीच का एंगल, और n, और मैंने कहा था ये n उसके परपेंडिकुलर है, मैंने बताया था. तो इसलिए इस तरह से ये B1 क्रॉस B2 विल बी परपेंडिकुलर. जो उसका भी क्वांटिटी निकलेगा, जो भी मैग्नीट्यूड निकलेगा वो निकलेगा, लेकिन वो होगा परपेंडिकुलर टू यहां पर. तो अब प्रोजेक्शन के लिए मैंने बताया था, प्रोजेक्शन के लिए अगेन आई रिमाइंड, it is reminded that projection of A on B that is equal to A dot B upon mod B. ऐसे ही मैंने समझाया था प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A डॉट B अपॉन A. ऑन जिस पर चाहिए प्रोजेक्शन, उसके मॉडुलस से हम डिवाइड कर देंगे. सो हियर देन व्हाट इज द, सो हियर प्रोजेक्शन. क्यों प्रोजेक्शन? शैडो, ये ऐसा शैडो वाली डिस्टेंस, तब ना होगा प्रोजेक्शन, तब ना होगा इसके परपेंडिकुलर पर जो भी एक होगा उस पर. तो हियर दैट इज A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन जिस पर चाहिए, इस पर चाहिए, तो B1 क्रॉस B2 मॉडुलस. ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. फिर से बता दे रहा हूं या इसको समझा दे रहा हूं. हमें एक वेक्टर A है I1, दूसरा वेक्टर A2. ये एक लाइन है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा V1 A1 एंड R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2. हमें क्या चाहिए कि यहां से इन पर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लीजिए. तो मैंने कहा कि कोई पॉइंट A होगा, कोई A1 होगा, कोई पॉइंट A2 होगा, कोई वेक्टर होगा V1, कोई वेक्टर होगा V2. तो हमें A2 माइनस A1 का दूसरे वाला लाइन पर प्रोजेक्शन चाहिए, लेकिन वो प्रोजेक्शन गलत हो जाएगा जब तक कि शॉर्टेस्ट नहीं होगा. तो शॉर्टेस्ट के लिए हमें वो B1 और B2 से नहीं मतलब था, B1 क्रॉस B2 से था, क्योंकि वही परपेंडिकुलर होगा. और तब मैंने निकाला एंड सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब मैं आऊंगा तो ये फार्मूला रहेगा. पहले तो मैंने इसलिए समझाया कि आपको याद रहे कि अगर R1 इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, R2 इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2, तो A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन B1 क्रॉस B2 पर. क्यों B1 क्रॉस B2 मैंने किया? क्योंकि परपेंडिकुलर होगा. क्यों परपेंडिकुलर होगा? ये डिफिनीशन है क्रॉस वेक्टर का.
टाइम लग रहा है ये, और लगेगा, क्या करूं, भागूं तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे कर लेंगे तो। चलिए सर, क्वेश्चन इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x - 1/1। फाइंड, इसको क्या करने के लिए रख रहा हूं, इसको भी हटा दूं, एक गलत आदत भी है बेटे, ये भी हटा दे रहा हूं, मुझे तो याद ही रहेगा और आपके पास वो रहेगा। क्या करूंगा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines are x - 1/-1 equal to y + 2/1 equal to z - 3/-2 and x minus, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं ये, लेकिन आते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे इसमें थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा। इक्वल टू y + 1/2 इक्वल टू z + 1/-2 पर, इस पर क्या मुझे बताना पड़ेगा कि ये सर 1 पॉइंट्स on 2 lines are 1 - 2 3 and 1 - 1 अगर सही लाइन नोट किया होगा तो 1, अरे ऐसे ही होगा तो x - x1 तो 1 रहा होगा तब ना, x - y - 2 तो ये +2 है, इसका मतलब वो माइनस रहेगा तब ना 2 बना होगा। z - 3 रहा होगा तब ना z - 3, एंड ये होगा एंड देयर डायरेक्शन रेशियोज आर क्या, डायरेक्शन रेशियोज आर हियर -1 1 - 2 and 1 2 and -2, ये हो गया। अब करना है A1, दिस इज A1, लिख दे रहा हूं A1, here it is A2, here it is B1 and here it is B2, ये है फॉर्मूला। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज A2 - A1 डॉट B1। क्यों डॉट, आप कह सकते क्यों सर डॉट, अगर डॉट नहीं लगाएंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और वो तो 0 हो जाएगा, इसलिए A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। लिखिए साहब, A1 क्या है ना, A1 वेक्टर इज I - 2j + 3k, A2 इज I - j - k। कहां से, अरे ये पॉइंट है, ये पॉइंट्स हैं तो इनका डायरेक्शन, इनका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 1i - 2j + 3k, कोई भी पॉइंट x1 y1 z1 x1 i y1 z, ऐसा j + z1 k, x y z है तो ऐसा वो i, तो 1 ये इतना होगा, A2 इतना होगा, और B1 इज -i प्लस j -2k एंड B2 इक्वल टू
B2। सबसे बड़ी बात, कितना करने के बाद भी कोई गलत हो जाए तो सोचिए, I प्लस 2j। इसलिए आप लोगों को तो बहुत ही अलर्ट होकर के हमको तो समझाना भी पड़ रहा है, इधर भी देखना पड़ रहा है, इसलिए हाँ ये तो अब उसके बाद पहले अब लीजिए B1 क्रॉस B2 निकालिए। पहला तो काम ये है, तो B1 क्रॉस B2 इक्वल टू, आप समझिएगा क्रॉस वेक्टर बताया होगा I J K, पहले लिख देना होगा, उसके बाद से उनके बाद उनका -1 1 -2 एंड 1 2 -2, ये होगा B1 क्रॉस B2। और ये डिटर्मिनेंट आप जानते हैं, I इंटू ये I ऐसे, तो -2 एंड +4, -2 +4 I इंटू देन -j। अब चलिए ये है ऐसे है, तो -1 -2 2 एंड माइनस इतना होता है तो +2 एंड देन प्लस k -2 -1। कहीं भी जरा सा भी गलती प्राण ले लेगी हमारा है। तो अब उसके बाद से देन B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 2i -4j -3k। ये B1 क्रॉस B2। शुड आई अगेन एक बार रिपीट कर लूँ, i j k -1 1 -2 और फिर 1 2 -2, I विल बी -2 +4 राइट, j विल बी तो -j कर दिया, ये या तो ऐसे भी करता हूँ, लेकिन छोड़िए अभी जो भी कर दिया वो ठीक है, -j और 2 एंड हियर 2 एंड k प्लस k एंड -2 -1। ठीक है B1 क्रॉस। अगर ठीक है तो आगे आइए, अभी काम रास्ता सोचिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये 6 मार्क्स के होते थे 12 में, जैसे उसको वो फुटा परपेंडिकुलर इमेज निकालना, ये सब भी 6 मार्क्स के आते थे वेक्टर में। एंड देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब यहां पर आएगा, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू A2 अब डायरेक्ट मैं करूंगा बेटा, A2 माइनस A1 है, A2 माइनस A1 यानी 0 हो जाएगा ना, वो भी I, A2 माइनस A1 दैट इज 0I हियर -j एंड +2j यानी +j एंड -k -3k यानी -4k डॉट। कहीं मैं अगर गलती होगी तो भी आप लोग करिएगा, मैं नहीं करूंगा। 2i -4j -3k होल अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 यानी √2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड प्लस 9 -3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर -4 स्क्वायर। हाँ अब बेटा ये आ जाना, डॉट है डॉट, तो क्या होता है उन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं मतलब उनके कोफिशिएंट्स को, तो एक तो 0 हो गया और -4 1 एंड -4 -3 +12 अपॉन ये कितना हुआ 4 16 एंड 9 दैट इज 8 अपॉन √29। Let me see with great patience the answer. Oh, good. Answer is there. And